হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু বিএসএসিআই বেলুড়ে তোমাদের সকলকে স্বাগত। আমরা জানি তোমরা প্রত্যেকে আজকে যে স্যারের জন্য ওয়েট করে আছো, প্রফেসর কেভিএস মাদান স্যারের জন্য। তো প্রফেসর কেভিএস মাদান স্যার ইতিমধ্যে আমাদের সঙ্গে চলে এসেছেন এবং আমরা এক্ষুনি সেই ক্লাসটাকে লাইভ করছি তোমাদের জন্য। Hello, Okay, right now we can continue with the same things. So alternatively, I have gone for the certain PPTs also, but they can be displayed next time. Ki there are few in number 4 or 5. So right now we can continue with the sessions. Ki we have to start with the paper 1. Ki paper 1 में जो teaching aptitude है, तो we have to start with those topics. In case I'm not wrong, so we can continue with those things. Exactly. And in case ki we have to go for the syllabus. तो जो syllabus है उसका जो theme है that has been given to us. तो इसका आपने थीम देखा हुआ है कि व्हाट इज गिवन इन द सिलेबस, कि जो सिलेबस है उससे पहले क्या है कि व्हाट इज गिवन टू अस, कि दैट कैन बी टेकन एज अ मेन एजेंडा, कि वंस वी से कि दिस इज टू बी टर्म्ड एज द एप्टीट्यूड. तो एप्टीट्यूड में क्या होता है कि वी हैव टू लुक एट द ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द सिलेबस. तो शुड वी स्टार्ट विद द डिस्कशंस? हेलो हेलो, definitely we can start. So we are starting with the paper 1. So this is known as the journal paper on teaching and research aptitude. So we must be very aware about the name also. It makes a mention of the teaching as well as the research. But in case we try to look at the whole syllabus, so this consists of the 10 units. तो इसमें जो पहले मेंशन किया हुआ है कि इन केस की वी ट्राई टू गिव गो एट द सिलेबस दैट इज बीइंग से ऑफर्ड बाय द यूजीसी नेट, they mention the main objective is to assess the teaching and research capabilities of the candidates. तो main objective है वो हमने देख के चलना है कि we have to go for the assessment कि as per the UGC net. So they want to assess the teaching and research capabilities of the candidates, but they make mention of each and every topic. The test aims at assessing the teaching and research aptitude as well. So we should be very clear about it कि main जो इसका title है वो क्या है, that is the teaching and the research aptitude. Then they make mention कि candidates are expected to possess and exhibit cognitive abilities. तो in case कि we try to look at the word cognitive, तो मैं इसको syllabus को directly दे रहा हूँ वैसे. इसकी जो पीपीटी है वो बनाई हुई थी मैंने, but we can directly go with the things कि candidates are expected to possess and exhibit cognitive abilities. Cognitive का मीनिंग क्या होता है? In case कि I ask you a very simple question, तो we can make this session से continuous also कि जो student है they can try to answer this कि what do we mean by the word cognitive. So this can be linked with the thinking. These can be linked with the thinking. इस पे कोई doubt हो कि जो thinking process है तो it can be linked with those things which include comprehension, कि जो comprehension है that can be taken as a subjective part, कि जो comprehension है इसका meaning क्या हुआ कि no teaching can be done say without say comprehension. तो comprehension has to be the main tool. इस पे कोई doubt हो आपको कि it is to be taken as a main tool. Then we move to the analysis. तो उसको हम analyze करते हैं कि what is given in the syllabus, उसमें different topics हैं, तो we can start with the research also. Even जो teaching है, this can be say
looked at from that angle. Then we moved at the evaluation. Evaluation is again very important. Understanding the structure of the arguments. So now they are moving to the reasoning part. जो रीजनिंग है उसमें कौन से पार्ट होते हैं? फर्स्ट इज अ डिडक्टिव एंड सेकंड इज अ इंडक्टिव रीजनिंग. The candidates are also expected to have a general awareness about teaching and learning processes in higher education system. Again, this is very important कि इसमें मेन जो एस्पेक्ट है वो क्या है? That is teaching and learning processes. Further, they should be aware of the interaction between the people, environment, natural resources, and their impact on the quality of the life. So this can be taken as a main agenda कि they are taking into account each and everything कि like कि they are moving on to the analytical part. तो जो analysis part है वो किससे develop होता है? तो we can try to take the help of the mathematics है. Then we can try to take the help of the logical reasoning. तो ये aspect हमने मान के चलने हैं कि these are going to be crucial. तो in case कि we try to sum up each and everything that is given in the main agenda of the syllabus. तो उसमें क्या होता है कि we have to develop a aptitude. कि जो UGC नेट है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि they want to look at the aptitude aspect. कि जिसको हम क्या नाम देते हैं? This can be given the name of the teaching and research aptitude. तो ये जो पूरी स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ तो इसकी मेन मोटिवेशन क्या है कि we need not to focus only the teaching and the research aptitude, but as a part of syllabus तो we need to focus on the 8 other units also. तो अभी जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि इन केस की we try to go for it. तो इसमें क्या होता है कि जो टीचिंग है इवन तो दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पिलर्स. तो कैन यू ट्राई टू डिफरेंशिएट देम? इसमें पिलर्स हैं डिफरेंट है वो कौन से होते हैं? इन केस की यू ट्राई टू असेस दिस कि इन केस की वी ट्राई टू फोकस ऑन द वर्ड्स ए टीचिंग एप्टीट्यूड. ये जो वर्ड्स हैं इन पे हम फोकस करना चाहते हैं तो इसमें मेन एस्पेक्ट कौन सा आता है कि टीचिंग. कैन यू ट्राई टू टेल मी कि व्हाट आर द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ इट कि व्हिच शुड बी टेकन एज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस. Again, you can try for it कि जो टीचिंग है उसके 4 पिलर्स हैं. फर्स्ट वी कैन सी टू इट कि फर्स्ट इज द एजुकेशन फिलोसफी कि इसकी जो फिलोसफी है उससे हमें क्या मिलती है. इन केस की वी ट्राई टू लुक एट द फर्स्ट पार्ट. जो फर्स्ट पार्ट है उसको इन केस की वी ट्राई टू लुक एट द सिलेबस कि उसमें मेंशन किया हुआ है कि टीचिंग है, कंसेप्ट्स है, ऑब्जेक्टिव्स है. तो जो एजुकेशन फिलोसफी है उससे हमें किस चीज का आइडिया मिलता है कि व्हाट आर गिवन कि व्हाट इज द एजुकेशन फिलोसफी. इसके मेन कंसेप्ट है वो कौन कौन से होते हैं. इसमें जो प्रिंसिपल्स हैं इवन दे आर इंक्लूडेड इन द टीचिंग इटसेल्फ. इस पे आपको कोई डाउट हो कि जिसको हम कहते हैं ना कि ये बुक में मेंशन्ड है कि कौन सी स्किल्स हैं जो प्रिंसिपल्स हैं जो आपके पास होने चाहिए. तो दीज एक्चुअली सर्व द पर्पस ऑफ से बीइंग से फिलोसॉफिकल इन नेचर कि उससे हमें ये पता चलता है कि जो एजुकेशन है जो टीचिंग है उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कौन से होने चाहिए. इसमें आपको कोई डाउट? अगेन यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन ऑन दिस कि फिलोसफी का मीनिंग क्या होता है. इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? दिस इज टर्म्ड एज अ दर्शन शास्त्र. इसमें कोई डाउट हो? इट्स वेरी सिंपल आल्सो. लेकिन जो दर्शन शास्त्र है इट इज बेसिकली फिलोसॉफिकल इन नेचर. तो इसमें हमें ये होता है कि जो टीचिंग है उसके जो मेन एस्पेक्ट है उसको हम वहां से विड्रॉ करते हैं, वहां से ड्रॉ करते हैं, वहां से क्या करते हैं इनको ड्रॉ करते हैं. तो दिस कैन बी टेकन एज अ बेसिक फिलोसफी. तो टीचिंग जो फिलोसफीज हैं जो एजुकेशन फिलोसफीज हैं तो दिस कैन बी टेकन एज अ मेन पिलर. तो उससे हमें क्या मिलती है कि गाइडेंस मिलती है कि हाउ टू गो अबाउट इट कि जो टीचिंग है उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कौन से होने चाहिए. तो वी ट्राई टू लर्न से दोस एस्पेक्ट्स. तो वी नीड टू हेलो एनी क्वेश्चन? सोनाली हेलो. तो फर्स्ट एस्पेक्ट इज अ टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग इटसेल्फ. ठीक है, इसको हमने किस फॉर्म में लेके चलना है कि जो टीचिंग है उसके थ्रू हम क्या करना चाहते हैं कि वी वांट टू डिलीवर द नॉलेज. कि इन केस की वी वांट टू डिलीवर द नॉलेज तो उसके इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वी कैन फोकस ऑन द लर्निंग. देन वी ट्राई टू लुक एट द इवेल्यूशन पार्ट कि इसमें इवेल्यूशन कैसे करनी है. क्योंकि जो सर्टिफिकेट बेस्ड एजुकेशन है तो उसमें जो असेसमेंट है या इवेल्यूशन है दे एक्चुअली से बिकम से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो एस्पेक्ट मैंने डिस्कस किए हैं कि टीचिंग इज टू बी टेकन एज ए फिलोसफी. इसका विड्रॉ कहाँ से होता है, इसको हम ड्रॉ कहाँ से करते हैं. तो वी ट्राई टू टेक द हेल्प ऑफ द एजुकेशन. एजुकेशन का मीनिंग क्या होता है? अगेन कि इन केस की आई ट्राई टू फोकस ऑन दिस वर्ड. एजुकेशन का मीनिंग क्या होता है कि नॉलेज है उसको हमने ट्रांसफर करना है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. तो दिस एस्पेक्ट कैन बी टेकन एज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये एस्पेक्ट आपने माइंड में रख के चलने हैं कि हाउ टू गो अबाउट देम. तो इसमें यहाँ तक आपको कोई डाउट हो कि हमें बेसिकली क्या है कि वी हैव टू टेक द गाइडेंस.
Okay, then we try to focus on the learning aspect कि इसमें learning aspect है वो कौन सा है. Then we try to focus कि इसमें teaching method है वो कौन से होते हैं. Then we come to the teaching method है, इसमें जो aids involved होती हैं तो we try to get to them. Then we try to focus on the assessment part कि इसमें जो evaluation है उसमें क्या होना चाहिए. तो ये एक जनरल सा आइडिया हम लेके चलते हैं कि इसमें कि हाउ टू गो अबाउट द टीचिंग एप्टीट्यूड. इसमें आपने ये एस्पेक्ट माइंड में रख के चलना है कि टीचिंग एप्टीट्यूड डज नॉट मीन कि आपका पेपर का टाइटल क्या है कि टीचिंग एंड द रिसर्च एप्टीट्यूड. तो वी नीड नॉट टू फोकस ओनली ऑन द टीचिंग एस्पेक्ट बट वी हैव टू फोकस ऑन ऑल द 10 यूनिट्स. तो उसमें क्या होता है कि जो यूजीसी नेट है उसकी मेन मोटिवेशन क्या होती है कि वो ये चाहते हैं कि आपका एक जो कॉमन एस्पेक्ट है जिसको हम एप्टीट्यूड है तो वो आपका जो एप्टीट्यूड है वो टेस्ट करना चाहते हैं, जिसके बेस पे आपको क्या मिलता है कि यू आर गोइंग टू गेट द नेट सर्टिफिकेट और यू माइट बी गेटिंग द जेआरएफ. तो ये मेन एस्पेक्ट होते हैं, तो इस पे आपने फोकस करके चलना है. यहां तक आपको कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन ऑन दिस पार्ट इन दिस एस्पेक्ट. तो नाउ वी कैन कम टू द कंप्लीट सिलेबस कि फर्स्ट इज टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग कंसेप्ट है. देन वी कम टू द ऑब्जेक्टिव्स. तो कंसेप्ट है, इसमें क्या जो मोटिवेशन होती है कि जो टीचिंग है उसकी डेफिनेशन क्या होगी. तो वी आर ट्राइंग टू लिंक इट विद द से एजुकेशन इटसेल्फ कि इसकी जो डेरिवेशन है वो कहां से होती है, एजुकेशन से होती है. एजुकेशन की जो डेफिनेशन है वी हैव डिस्कस्ड इट. इसमें क्या होता है कि जो सोसाइटी की नॉलेज है दैट इज टू बी टेकन टू द नेक्स्ट जनरेशन. तो दिस कैन बी टेकन एज अ मिशन ऑफ द एजुकेशन. अब जो टीचिंग है दिस कैन बी पार्ट ऑफ द एजुकेशन. दिस इज गोइंग टू बी द मेन पार्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम. तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए. तो फर्स्ट वी ट्राई टू लर्न की व्हाट इज टीचिंग. टीचिंग में क्या गिवन होता है. फर्स्ट इज अ कंसेप्ट है, सेकंड इज ऑब्जेक्टिव्स है, देन द लेवल्स ऑफ द टीचिंग है. तो ये एस्पेक्ट आपने तीनों करके चलने हैं कि कंसेप्ट क्या होता है. कंसेप्ट का मीनिंग कि वी हैव टू गो फॉर इट. इसमें जो फिलॉसफी है तो दे आल्सो बिकम ए पार्ट ऑफ इट. कि पहले ऐसा था कि जो टीचिंग जो फिलोसफी है उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे एग्जाम में, बट इन केस की वी ट्राई टू लुक एट इट अगेन. तो इसमें जो टीचिंग में जो टीचिंग के कंसेप्ट है इसमें क्या होता है कि फिलोसफी से लिंक्ड है वो क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं. तो वी कैन सी टू इट कि वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द डिफरेंट फिलोसफीज. तो कैन यू ट्राई टू नेम से 1 और 2 फिलोसफीज कि जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं. अगर आपके यहाँ पे कोई बीएड स्टूडेंट है या एमएड है तो दे कैन ट्राई टू आंसर दिस पार्ट कि इसमें जो फिलोसफिकल एस्पेक्ट है वो कौन से होते हैं. अगेन एनी वन ऑफ यू they can try to answer this कि 3, 4, 5 philosophies हैं वो कौन सी होती हैं. Any one of you. Pragmatism, very true. So can you try to define कि what is a pragmatism again. It's a very good answer. Idealism, very true. It's again a very true answer. Then what it can be. जो हमने मेनली बुक में मेंशन की हुई है वो कौन सी है. फर्स्ट इज द बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट कि इस पे हम फोकस करते हैं. मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता एट दिस स्टेज. ठीक है. सेकंड वी टेक इनटू अकाउंट की व्हाट इज अ कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट. देन वी ट्राई टू फोकस ऑन द कंस्ट्रक्टिव स्कूल ऑफ थॉट. तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट है जिनको आपने ध्यान में रखने चलना है. तो दीज कैन बी टेकन इन द फॉर्म ऑफ द एवोल्यूशन आल्सो. ये जो टीचिंग है या जो एजुकेशन है उसकी जो डेवलपमेंट है in what form this has taken place. कि आपने काफी अच्छे आंसर दिए हैं कि आइडियलिज्म है, प्रेगमेटिज्म है, इवन जो योगा है दिस कैन बी टेकन एज ए फिलोसफी. नेचुरलिज्म है, एक्लेक्टिक फिलोसफी है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है, एग्जिस्टेंशियलिज्म है. तो ये एस्पेक्ट है डिफरेंट है, ये अपने माइंड में रख के चलने हैं कि हाउ टू गो अबाउट देम. तो देन किस पे हम फोकस करते हैं कि वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं. तो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इवन दे हैव इवॉल्वड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. Then we try to focus on कि what are the different levels of teaching. First is memory, second is the understanding, and third is the reflection. So can you try to explain कि what is the memory aspect? Just in 2 or 3 words, because we are not going to discuss it. Yes, tell me, any one of you. सर जो हम रिकल करते हैं उसको हम मेमोरी लेवल कहते हैं. Okay, very true. कि we are in a position to recall the aspect. So that can be termed as a memory aspect. Second इसमें क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग है. तो what does it mean? Any one of you, you can go for a very simple answer. Thinking. Okay, thinking है, अंडरस्टैंडिंग है कि what are the basic concept.
इसमें हम फोकस किस पे करते हैं कि इनकेस की आई ट्राई टू यूज द वर्ड अंडरस्टैंडिंग, तो अंडरस्टैंडिंग का मीनिंग क्या होता है कि वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द से अंडरस्टैंडिंग का मीनिंग क्या होता है कि वी आर गोइंग टू Deep अंडरस्टैंड द into कंसेप्ट. the realism and all. Going into deep of the subject, so that Okay, very true. Yes, yes. We try to understand the concept. We try to understand the different concepts. So this can be termed as a understanding. मैं इसमें बड़ा basic सा idea ले रहा हूँ. Okay, then we try to focus on the reflective. तो reflective level क्या होता है? the most thoughtful mode of operation and student-centered teaching process, which can be appropriate for the higher class. Okay, definitely higher class है, but this can be applied in the at every stage of the life. तो this is basically linked with the decision making कि जो different concept है जिनकी हमने understanding की हुई है during the second stage है, तो जो different concepts होते हैं उनकी आपस में interlinking कैसे होती है so that these can be applied in the different situations of the life. तो this can be termed as a reflective level. आपका जो आंसर है वो ठीक है काफी, मतलब मैं उसको डिनाई नहीं करूंगा, ठीक है, you have given से very good answers. लेकिन रिफ्लेक्टिव का मीनिंग क्या होता है कि उसका जो एप्लीकेशन पार्ट है, कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसका जो एप्लीकेशन पार्ट है, दिस कैन बी टर्म्ड एज अ रिफ्लेक्टिव. तो ये तीनों एस्पेक्ट है, ये आपने करके चलने हैं. आई एम जस्ट टेकिंग ए वेरी बेसिक आइडिया. तो उसके बाद क्या आता है अगेन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगेन की टीचिंग है, इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं. तो दीज हैव बीन मेंशन्ड, इसको हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है. देन वी ट्राई टू लुक एट द बेसिक रिक्वायरमेंट्स कि जो टीचिंग है तो उसमें बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए. कैन यू ट्राई टू आंसर दिस इन 2-3 वर्ड्स? अगेन आई एम नॉट लुकिंग फॉर वेरी डिटेल्ड आंसर. यस, की बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग, व्हाट इट कैन बी. A teacher and student and a classroom environment. Okay, very true. This can be defined as a support system. जिसको हम क्या कह सकते हैं कि this can be termed as a MBS also. Very true. Then Shreya, she has come with the answer. Curriculum also. Curriculum also. Okay, very true. So then we need to differentiate between the curriculum and the syllabus. तो ये aspect भी अपने mind में रख के चलना है कि what do we mean by the curriculum and what do we mean by the syllabus. तो ये aspect है, ये भी आप देख के चलना. देन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसमें क्या होता है कि जो टीचिंग है, जो पर्सन है हु वांट्स टू एंटर इनटू द टीचिंग प्रोफेशन, तो उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. वी कैन अंडरस्टैंड दैट. देन द टीचर शुड हैव सैंपल नॉलेज आल्सो. दिस कैन अगेन बी टेकन एज ए बेसिक कॉन्टेक्स्ट. तो उसकी एक अंडरस्टैंडिंग एस्पेक्ट है, वो भी अगेन से दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द से लर्नर. इन कॉन्टिन्यूटी वी कैन से कि जो आपका एनटीए का एग्जाम है, कि जो एग्जाम है जो एनटीए कंडक्ट करती है, नेट एंड जेआरएफ है, तो दिस बेसिकली आर गोइंग टू टेस्ट द एप्टीट्यूड. तो दिस कैन अगेन बी लिंक्ड विद द से बेसिक रिक्वायरमेंट कि वो यही चाहते हैं कि आप में एक बेसिक एप्टीट्यूड है वो होना चाहिए. एप्टीट्यूड वैसे बेसिक ही होता है, ठीक है. देन वी कम टू द लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स. यहाँ पे मैं सेकंड एस्पेक्ट देख रहा हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट एंड एडल्ट लर्नर. तो कैन यू ट्राई टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू कैटेगरीज. एडोलसेंट क्या होते हैं एंड एडल्ट क्या होते हैं, जस्ट इन 2-3 वर्ड्स. कोई डिटेल्ड आइडिया नहीं चाहिए हमें यहाँ पे. यस, वेरी ट्रू. एडोलसेंस है जिसमें ना समझ और समझ के बीच में रहते हैं, और एडल्ट जिसको समझ हो जाती है. ओके, वेरी ट्रू. एनी अदर आंसर? Adolescents adolescents are in the level of puberty level, like below 18, and then if you say adults, then they are above 18. Okay. So you are trying to link it with the franchisee system. Okay. So this is important, but this cannot be linked with the say education system directly. Again, it is important aspect. So ये aspect है, ये आपने again yes, any one of you? सर एडल्ट्स मतलब जो एडल्ट्स नहीं होते हैं उन लोगों को सिखाना पड़ता है, और वो जो एडल्ट होते हैं वो लोग खुद सीखना चाहते हैं. वेरी ट्रू. दिस इज अगेन ए वेरी वंडरफुल आंसर कि इसमें जो सेल्फ लर्निंग है कर सकते हैं. हाँ सर, सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं. हाँ, मतलब वो लोग मतलब लर्निंग का जो मैंने यूजफुलनेस है वो समझता है. मतलब मुझे लर्न करना होगा ये सब. हाँ, वेरी ट्रू,
बिल्कुल ठीक है आपकी बात की। इसमें बेसिकली क्या होता है कि एट व्हाट स्टेज इज लाइफ एट, कि लाइफ की कौन सी स्टेज पे हम कौन सा एस्पेक्ट है वो अडॉप्ट करते हैं ना कि यस एडल्ट जो है वो थॉटफुल टीचिंग मेथड में आते हैं, हाँ जी हाँ जी एडल्ट नहीं है वो थॉटलेस है। in case ki I try to take the example, in case ki I try to take the example of PhD, तो ये किससे हम लिंक करेंगे इसको, एडल्ट से या एडोलसेंट से? ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसका आंसर भी डायरेक्ट है वैसे तो, बट स्टिल आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन। एडल्ट से इसमें क्या होता है कि जो डिसीजन मेकिंग है दैट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। तो इस टाइप की जो लर्निंग होती है दिस कैन बी लिंक, दिस कैन बी टर्म्ड एज एडल्ट लर्निंग। तो ये जनरल सा एस्पेक्ट ले रहा हूं मैं, इसमें आई एम नॉट गोइंग इनटू द निटी-ग्रिटी ऑफ दिस। ओके, नाउ वी कैन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। इसमें मेंशन है कि एकेडमिक क्या होता है, अगेन वी कैन अंडरस्टैंड कि एकेडमिक क्या होता है, ठीक है, इस पे कोई डाउट हो आपको। देन द सोशल एस्पेक्ट क्या होता है, कि जो सोशल प्रोसेस है अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कोई डाउट हो। बेसिकली वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सोसाइटी, तो इसमें फैमिली सिस्टम है दैट इज आल्सो इंक्लूडेड। इसमें जो पीर ग्रुप्स होते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल है, तो लाइकवाइज तो वी कैन कम टू दो स्टेजेस। इसमें क्या होता है कि जो ग्रुप फॉर्मेशन है उसकी भी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, उस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन वी कम टू द इमोशनल एस्पेक्ट। आपने एक वर्ड सुना होगा कि दैट इज टर्म्ड एज अ इमोशनल इंटेलिजेंस, तो इसकी जो डिटेल्स है उसको आप देख लेना कि हु हैज गिवन दिस टर्म एंड ऑल, ठीक है। देन वी गो टू कॉग्निटिव। कॉग्निटिव का मीनिंग क्या होता है, अगेन आई वुड लाइक टू आस्क यू, इसमें जो थिंकिंग प्रोसेस है वो कौन से होते हैं, तो इनको हमने देख के चलना है कि हाउ टू गो अबाउट देम। देन द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो कैन यू ट्राई टू एक्सप्लेन दिस? ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो शुड इट बी लिंक विद द इंक्लूसिव एजुकेशन, कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है तो उसकी हम क्या करना चाहते हैं कि उसको हम लेना चाहते हैं इनटू द इंक्लूसिव सिस्टम, तो दैट वे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक ना हम मैनेजमेंट में वर्ड यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। तो ये वर्ड आप जानते हो, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। तो वी हैव टू मेक ए सिंपल assumption कि वी आर द गिफ्टेड से चिल्ड्रन ऑफ द गॉड, एंड हमारी जो कैपेबिलिटीज है, पोटेंशियलिटीज है, वो डिफरेंट होती हैं। इवन इन केस की यू ट्राई टू लुक एट द एट ए क्लास, तो उसमें भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, मेल है, फीमेल है, देन जो एक कैटेगरी डिफाइन की है दिव्यांग है, तो लाइकवाइज, ठीक है, दे कैन बी कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट कम्युनिटीज। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसकी पॉलिसी क्या होती है कि उन जो क्लास है उसको हमने क्या बनाना है कि दिस शुड बी गिवन द फॉर्म ऑफ द इंक्लूसिव, ठीक है, उसको हम इंक्लूसिव एजुकेशन में इन्वॉल्व करना चाहते हैं। तो ये एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी कैटेगरीज हमने डिफाइन की हुई है बुक में, तो दे आर ऑल बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये एस्पेक्ट आप करके चलना है कि इसको देख के जाओ कि व्हाट इज द मेन एस्पेक्ट। इस पे एग्जाम में डेफिनेटली चांसेस होते हैं कि दे कैन आस्क यू वन क्वेश्चन। देन फैक्टर कौन से होते हैं, अगेन फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग। आपके पास इसका सिलेबस है कि व्हाट इज मतलब गिवन बिफोर यू। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग क्या होते हैं, अगेन कैन यू ट्राई टू गिव इट इन 2-3 वर्ड्स? फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, So we can say educational factor. We can 2-3 say वर्ड्स का मतलब ये है कि यू कैन ट्राई टू गिव मी द डेफिनेशन ओनली कि कौन सा मेन एस्पेक्ट है। यस अनिर्बन, independent, dependent, and extraneous factors, something like that. extraneous factors, okay, and okay, so this can be extraneous factors, okay, yes, The teacher is the independent factor, the student is the dependent factor. okay, very true. It's और a सर good एक बात कहना चाहता हूँ कि पढ़ाने का जो नजरिया है वो भी तो थोड़ा अलग होना चाहिए ना, जिससे स्टूडेंट को इंटरेस्ट मिले पढ़ने में। exactly, very true. This can be taken as a wonderful answer कि टीचिंग जो लोग हैं, जो पीपल हैं, जो जिसको हम पीपल एलिमेंट कहते हैं, तो दे शुड बी इंटरेस्टेड इन द क्लासरूम, ठीक है, ये एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दिस कैन बी लिंक्ड विद द बिहेवियरल एस्पेक्ट, ठीक है, कि आपकी नॉलेज बेस अच्छा है, बट इन केस की यू आर नॉट एबल टू हैंडल द स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो उसमें क्या होता है कि दिस कैन बी टेकन एज अ नेगेटिव एलिमेंट। ओके, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट, वेरी ट्रू। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू द टीचर, तो टीचर से लिंक्ड है, वो हमने डिस्कस किए 2 या 3 या जितने भी फैक्टर्स हैं। देन वी कम टू द लर्नर, कि जो लर्नर है उसमें क्या होना चाहिए, पैशन होना चाहिए या नहीं, ठीक है, दे शुड गो फॉर ए काइंड ऑफ द, क्या इसमें कह सकते हैं हम कि जो लर्नर है उसमें क्या होना चाहिए, एक पैशन होना चाहिए, दे शुड हैव द इंटरेस्ट कि वो डिग्री जो एक्वायर कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि व्हाट काइंड ऑफ द कंट्रीब्यूशन दे कैन मेक टू द सोसाइटी, ये एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये एस्पेक्ट हमेशा आपने करके चलने हैं।
Then the support material, again we can understand कि school है, उसकी MBS क्या है, buildings कैसी हैं, likewise. So we try to take into account all these factors. Even इसमें ये होता है कि जो CBSE है या जिसको हम ICSE कहते हैं कि what kind of contribution is being made by them, कि उनका syllabus defined नहीं है या likewise कुछ भी हो सकता है. This can be in any manner. या syllabus defined नहीं है, तो this can be linked with all those factors. Then the instructional facilities क्या होती हैं again. So this can be important to us. Instructional facilities. So you can try to answer, come with the answers. क्या हो सकता है इसका आंसर? Instructional facilities. एक सिंपल सा आइडिया लेना है, इसमें हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे. Sir, seminar room. टीचिंग एड्स. हाँ जी, टीचिंग. Okay, very true. Teaching aids है. Then Projectors. Projectors, projector seminar है. rooms. तो Okay, वो तो very सब true. टीचिंग एड्स ही है ना. हाँ हाँ, very true. This can be taken as a very good answer. So whiteboards. It's also instruction facility. Yes. So these can be termed as a smart boards also. ठीक है, white boards हैं. This can be again taken as a very good factor. Then we come to the learning environment. कि ultimately क्या होता है कि they have to create a learning environment. Learner का meaning क्या होता है? Again, कि in case I try to come to the definition of the learning, उसका meaning क्या होता है? Yes, any one of you who can try to answer कि what is the main learning method? Changes. Behavioral changes. Okay, very good. Then what else? Listening. Okay. That is again very good. Acquiring knowledge. Increase the Sir, knowledge. also, so Yes, yes. learning of values. Okay, learning of values है, ethics है. It's again very important. कि ultimately हम ये चाहते हैं कि they become the good citizens. So this can be taken as a wider aspect. Participation. Sir, learning methods तो Participation बहुत in the सारे class. होते हैं. जैसे कि Sir, imitation, decision making. observation, experience, teaching, instruction, trial and error, reflection, experimentation, probing, Okay, etc. you have gone for the complete answer. ভাই হেডফোনটা হচ্ছে বাম আমলের হেডফোন Okay. বাম আমলের কি আমল বাম বাম So you have taken a very wider aspect of all the aspects of the learning. तो इसकी मेन एक डेफिनेशन है वो आपने करनी है कि इसमें हम ये चाहते हैं कि जो चेंजेस हैं इन द लर्नर वो क्या होनी चाहिए, परमानेंट होनी चाहिए. उसमें ये नहीं होते कि you are going only for the yes any yes एक बात है जो अपग्रेडेशन की बात है कि एक टीचर जब एक स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं या सिखा रहे हैं तो उनको भी तो अपग्रेडेड होना चाहिए ना. एक आधार से तो टीचर भी एक स्टूडेंट है. Okay. Very true. That is very important. You have taken a very good aspect कि ऐसा भी important है, होना चाहिए. तो we have to go for the creation of the discipline also again. कि एक क्लास है उसमें जो डिसिप्लिन का एनवायरनमेंट है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसमें हमने जो मेंशन किए हुए हैं कि बेसिक कंडीशन ऑफ लर्निंग है, आई एम जस्ट कमिंग टू द कंडीशंस ओनली. इसमें क्या होता है, कॉन्टिग्यूटी है, सेकंड इज अ प्रैक्टिस है, थर्ड इज अ रीइंफोर्समेंट है, फीडबैक है, जनरलाइजेशन एंड द डिस्क्रिमिनेशन है. ठीक है, ये एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है आपकी, मतलब आपने ये करके चलने हैं. बट आई एम नॉट अगेन से गोइंग इनटू ईच एंड एवरी डिटेल. तो हमने इसका सिलेबस का एक आइडिया सा लेके चलना था कि आपका जो इंटरेस्ट है वो इसमें होना चाहिए. तो इनकेस की आई टॉक अबाउट द बुक, इसमें क्या है कि जो लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पे हमने 11 लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दे हैव बीन टेकन इनटू. लेकिन इसका इसका जो लर्निंग है उसको हमने डिफाइन कैसे करना है. हम जस्ट ट्राइंग टू गो फॉर वन डेफिनेशन कि लर्निंग इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस. तो ये डेफिनेशन है, दिस वाज गिवन बाय गेट्स. तो ये 2 या 3 डेफिनेशन है, ये आपने करके चलनी है कि लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडॉप्टेशन. Then Crow and Crow he has given a definition. Learning involves the acquisition of habits, knowledge, and attitude. This can be taken as a very comprehensive aspect. तो जो लर्निंग के मेथड्स हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय द इमिटेशन. इमिटेशन का मीनिंग क्या होता है, जनरल आइडिया. मैं बोलूं सर? Yes, very true. अनुकरण करना. सर अनुकरण करना. Very good. You have used a very beautiful word कि अनुकरण करना. It's again a very good word. जी सर, मैं
We see that small girls usually imitate their mothers and small boys their fathers. Even adults do imitations of others. Especially less confident or less SRT people look for confident and SRT people. With practice and passage of time, they also become confident or SRT. Sir, ठीक Yes, बोला very मैंने? true. This can be Thank taken as outcome of the say, learning process कि इसमें हम क्या जो observable changes आती हैं तो how to look at them. तो ये aspect है again आप देख के चलो कि features of the motivated classroom जो हमने discuss किया ना था कि classroom है environment है ये वो तो उसमें कौन सा आता है एक तो belongingness होनी चाहिए again कि in case की you enter into a class तो वो aspect important है. Second is a meaningfulness है कि आप में जो objectivity का element है that is again say very important. जो बुक में मेंशन किए हुए मैं उनको पढ़ रहा हूँ ठीक है देन इट इज अ कॉम्पिटेंस देन इट इज अकाउंटेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है यू मस्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट डज इट मीन अकाउंटेबिलिटी देन ऑटोनॉमी अगेन जिसको हमने किससे लिंक करना है विद द रिफ्लेक्शन पार्ट तो ये एस्पेक्ट है ये हमेशा अपने माइंड में रख के चलने हैं कि जो टीचिंग है टीचिंग का मीनिंग क्या होता है कि वी आर गोइंग फॉर द डिलीवरी ऑफ द नॉलेज उसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं दीज कैन बी इन्वॉल्व तो ये एस्पेक्ट हमेशा माइंड में रख के चलो एंड दीज आर वेरी कॉमन इन नेचर तो जो लोग ये कहते हैं ना कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड है इट इज गोइंग टू बी वेरी टफ तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो थोड़ी सी प्रैक्टिस होती है कि यू गो फॉर द स्टडी ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स अगेन एंड अगेन तो यू कैन अंडरस्टैंड से ईच एंड एवरीथिंग इसमें ये होता है कि जो डिफरेंट टीचर्स हैं इंस्टीट्यूशन में तो इवन दे आर गोइंग टू हेल्प यू इन अ वेरी बिग मैनर उसमें ये आ गया कि मेथड ऑफ टीचिंग क्या होते हैं एनी एग्जांपल यू कैन ट्राई टू गिव Demonstration, very good. Seminar. Lecture. Lecture. Method is Lecture. Simulation. Okay, very good. Teacher-centered method, learner-centered method, offline method, online method, mixed method. Exactly, very true. तो इसमें बुक में हमने जो कंप्लीट जो इसमें मेथड्स हैं दे हैव बीन गिवन दीस कैन बी टीचर सेंटर्ड स्ट्रेटजी मिक्स्ड स्ट्रेटजी एंड द लर्नर सेंटर्ड स्ट्रेटजी तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा स्कोप होता है कि वी कैन गो फॉर सम काइंड ऑफ द ओवरलैपिंग लेकिन दीस कैन बी टेकन एज अ मेन एस्पेक्ट एक बात कहनी थी आपसे वो क्या है कि अगर लिटरेचर का क्लास चल रहा है या फिर दूसरा ऐसा कोई सर अब मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ इंग्लिश का यस वेरी ट्रू लिटरेचर का क्लास चल रहा है तो अगर मैं चाहूँ तो मेरे स्टूडेंट को तो एक सिनेमा भी दिखा सकता हूँ जिससे कि उसके अंदर एक अलग ही पर्सपेक्टिव तैयार हो कि देखो ये सब्जेक्ट है इसमें जो सुख दुख की बातें हैं वो भी तो अब एक सब्जेक्ट से थ्रू गिवन ए वेरी गुड आंसर तो इसको हम कहते हैं कि जो डेल टोन ऑफ एक्सपीरियंस है यस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपने डिस्कस किया है तो ये हमने पार्शियली जो है वो बुक में भी मेंशन किया हुआ है जिसको हम कहते हैं कि डेल टोन ऑफ एक्सपीरियंस है तो यू कैन गो फॉर दोस थिंग्स आल्सो सो दैट यू कैन गेट ए बेटर आइडिया दिस कैन बी टेकन एज अ वेरी ब्यूटीफुल आंसर रादर कि आपने यू हैव टू गो फॉर द डिफरेंट मेथड्स देन वी कैन कम टू यस Method, activity based method. हाँ वेरी ट्रू अगेन वेरी ट्रू Role playing. ओके गुड वेरी नाइस तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट है जिनको अपने माइंड में रख के चलना है सो दैट वी गेट्स ए बेटर एंड बेटर आइडिया एक होती है ब्लेंडेड लर्निंग व्हाट डज इट मीन कि जो यूजीसी का जो प्रोस्पेक्टिव है वो क्या है कि दैट इज टू फोकस ऑन द ब्लेंडेड लर्निंग Both online and offline learning. यस Both online and offline learning. ओके वेरी ट्रू बेटर इसका जो मेन एस्पेक्ट है वो फिर से आप देख के चलना है कि व्हाट डज इट एग्जैक्टली से कि जो स्टूडेंट है उनको क्या करना है इनिशियल स्टेज पे एंड अगेन से व्हाट शुड बी द रोल ऑफ द टीचर तो ये एस्पेक्ट है इनको आप देख के चलना है कि हाउ वी गो अबाउट द इंटरमिक्सिंग ऑफ द टू कॉन्सेप्ट्स देन मेथड्स ऑफ टीचिंग ओके इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग टीचर सेंटर्ड लर्नर सेंटर्ड ऑफलाइन ऑनलाइन स्वयं तो स्वयं का आपको क्या आइडिया है कि व्हाट डज इट मीन स्वयं है ये क्या होता है देन वी स्वयं प्रभा सिस्टम क्या होता है मैं बोलूं सर यस वेरी ट्रू बोलो Swayam is an e-business made in India. IT massive open online courses platform for providing best quality education that can be accessed by anyone, anytime, and anywhere using an IT system. It was launched by the government of India
to achieve the three cardinal principles of education: access, equity, Exactly. and quality. Equity and quality. Sorry, equity and quality. Access means taking the best teaching learning even to the most disadvantaged. It seeks to bridge the digital divide for the economically disadvantaged student to all the levels. It is taught in classrooms from 9th class to till post graduation to be accessed by anyone, anywhere, or and any and at any time. These sessions are developed by the best faculty and Okay. Very true. You have gone for the most comprehensive explanation कि इसमें जो फैक्ट्स होते हैं इसके कौन से कंपोनेंट एलिमेंट है, तो ये सब आपने देख के चलने हैं कि जो क्वेश्चंस है तो दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट टू आस्क यू क्वेश्चंस, क्योंकि जो स्वयं है दिस कैन बी टेकन एज अ से सिस्टम, नर्व सिस्टम ऑफ द एजुकेशन इन द डेज टू कम. इसमें जो स्वयं है, शुड इट बी टेकन एज अ पार्ट ऑफ द मूक और नॉट, Yes. और मूक इज अ पार्ट ऑफ द स्वयं? Swayam Yes, is a sir. part of MOOCs, not the vice Okay, versa. स्वयं इज ए पार्ट ऑफ द मूक. वेरी गुड. इस पे कोई डाउट हो तो यू हैव टू गो फॉर ऑल द एस्पेक्ट. हमने जो बुक है उस पे जो मूक के एस्पेक्ट हैं दे हैव बीन गिवन कि जैसे ड्रुपल है या जो टेक्नोलॉजीज हैं तो दे हैव बीन मेंशन्ड. तो जब मैंने ये एस्पेक्ट डिस्कस किया बुक में तो दीज सीम्स टू बी क्वाइट से प्रोग्रेसिव आल्सो कि आई हैव पिक्ड आइडिया फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ नॉलेज. तो ये एस्पेक्ट देख के चलना है कि इसमें जितनी भी इनोवेशन इन्वॉल्व होती है तो उन सबको आप देख के चलो कि व्हाट इज गिवन इन दैट. तो इसकी जो एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट है वो किसमें मिलती है? दैट इज इन द आईसीटी. वो जो आईसीटी का यूनिट है उसमें यू कैन से गेट से बेटर एंड बेटर आइडिया. तो वो एस्पेक्ट आप मान के चलिए कि ये जो तीन एस्पेक्ट होते हैं कि फर्स्ट इज अ टीचिंग एप्टीट्यूड है, सेकंड इज अ कम्युनिकेशन है, एंड थर्ड इज अ आईसीटी. तो दीज कैन बी टेकन एज अ थ्री कंपोनेंट्स ऑफ द टीचिंग सिस्टम. तो तीनों को आपने कंटिन्यूटी में डिस्कस कर लो तो दैट विल ऑलवेज बी बेटर. कि आपने जब डिस्कशन करनी है तो यू कैन गो इन दैट मैनर. देन वी मूव टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट. फर्स्ट दैट इज अ टीचिंग सपोर्ट सिस्टम. इसमें कोई डाउट हो कि जो टीचिंग है उसमें सपोर्ट चाहिए होती है लाइकवाइज. तो बुक में हमने इसका आइडिया लिया हुआ है. देन द ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड. तो जो कोविड है उसमें किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा थी? इन केस की आई ट्राई टू से नेम्स दीज थ्री कि फर्स्ट इज ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड आईसीटी. इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए. इट्स ए क्वाइट डायरेक्ट क्वेश्चन. आईसीटी है, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए. एंड देन इन द लास्ट वी मूव टू द इवैल्यूएशन सिस्टम कि एलिमेंट्स एंड द टाइप्स ऑफ द इवैल्यूएशन. अगेन कि जो इवैल्यूएशन है हाउ टू गो अबाउट इट. तो जो इवैल्यूएशन है इसको आप डिफाइन कर सकते हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इवैल्यूएशन एंड द असेसमेंट. यस, एनी वन ऑफ यू? बेसिक आइडिया कि इसमें क्या डिफरेंस होता है वो आपने करके चलना है. सर, असेसमेंट के साथ जब वैल्यू ऐड होते हैं तभी वो इवोल्यूशन कहा जाता है. ओके. Sir, Any other idea? evaluation is done by a teacher and assessment can be done by yourself as well. Okay. Assessment is a part of evaluation. Assessment is a part of the evaluation or vice versa? Yes. এখন আমি যাচ্ছি না. हाँ जी. Yes, any say better answer? Assessment are the compare of other students and evaluation is the judgment of goal achievement. गोल अचीवमेंट कितना किया हुआ है इसलिए जजमेंट करना वो इवैल्यूएशन है. और असेसमेंट जो है वो दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर करने के लिए करा जाता है. ओके. सर आपने क्या पूछा? असेसमेंट और एवल्यूशन में क्या फर्क
Sir, Exactly. assessment can be taken as a process where evaluation is a product. Like assessment is like you are doing an assessment of how much a student has learned Exactly, or very what true. was lacking in his performance, and evaluation is like the end product of that assessment. Okay, exactly. Key we can take into account the three aspects. First is the measurement, second is the assessment, and third is the evaluation. So ये जो तीनों aspect है, these are actually very important to us. तो ये तीनों Sir? aspect आपने देख के चलने हैं कि how to go for the main say differentiation between the three aspects. हाँ जी है, yes. Sir, as example, can I say evaluation is the mock test and assessment is the internet exam? Evaluation is the Mock pardon me? test. Mock Okay. test. हम्म. And assessment is the internet exam जो हम देते हैं. नहीं ऐसा नहीं है. The assessment sir. can be like our term test or something like that used to taken by the school, like in the midterm or something, and then evaluation Like formative exams or summative exams. Okay. सर असेसमेंट है कंपैरिजन मतलब कंपेयर करना है और इवैल्यूएशन है मूल्यांकन मैं कितना अच्छा कर रही हूँ ये मूल्यांकन करना है इवैल्यूएशन. Okay. सर कैन आई से समथिंग? Okay, इसमें I would like to say. assessment grading can be done. Grades. Okay, let me reflect on those things कि जो मैंने mention किया हुआ है book में itself directly. तो इसमें जो first aspect है कि gathering information about the candidate. This can be termed as a measurement. तो this can be done with the help of the different set tests. जो मैं इसकी detail में again I'm not going into those things. ठीक है. Second is a comparison of two or more sets of information. ठीक है. जब हम comparison करते हैं तो उसमें क्या होता है कि this can be given the name of the assessment. कि comparison of two sets of the information plus प्लेसमेंट ऑफ वैल्यू की प्लेसमेंट वैल्यू है रैंकिंग ये वो हम करते हैं दैट कैन बी टर्म्ड एज इवैल्यूएशन. तो ये आप फिर से आप इसको देख के चलना बट अगेन एट द सेम टाइम कि आई एम नॉट गोइंग इनटू ईच एंड एवरी एस्पेक्ट कि इसकी जो डिटेल स्टडी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें होता है कि एक होती है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन है एंड सेकंड इज कैन बी टर्म्ड एज अ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन. इस पे क्या डिफरेंस होता है कि व्हाट इज अ प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, देन द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड द समेटिव इवैल्यूएशन. तो ये एस्पेक्ट भी आपने हमेशा करके चलने हैं. एक होती है जिसको हम कहते हैं कि नॉर्म्ड रेफरेंस इवैल्यूएशन है. सेकंड कैन बी टर्म्ड एज अ क्राइटेरिया रेफरेंस इवैल्यूएशन है. ये भी आपने करके चलना है अगेन कि ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिनको मतलब जो एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं. जो सीबीसीएस सिस्टम है इसमें भी एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं अगेन. So in case we try to discuss what is the evaluation system, elements and types of evaluation. Second is evaluation is choice-based credit system in the higher education. Computer-based testing है जिसको हम CBT कहते हैं. Then the innovation in the evaluation system. किसमें कौन सी innovation है ये वो है. तो ये book पे हमने mention की हुई है. तो you can try to take help from each and everything. ठीक है. बाकी आपको जो classroom material मिलता है तो you can definitely refer to that material. तो यू कैन सी एट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट. तो ये मैंने जनरल आइडिया लिया हुआ आपको. एग्जाम में आजकल क्वेश्चन है वो किस टाइप के पूछे जाते हैं उसका आपको आइडिया है कि इसमें क्या होना चाहिए एग्जैक्टली कि किस टाइप के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं. कि जो इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड है इस पे क्या होता है कि दे आर गोइंग फॉर द नंबर ऑफ द कंसेप्ट्स कि जो वन कंसेप्ट है दिस कैन बी लिंक्ड विद say learning, second can be linked with the teaching, and third this can be linked with the teaching method likewise. So they can go for they can offer you the different say options. तो उसमें से जो options में से आपने जो right options हैं तो they have to be picked. तो ये बेसिक आइडिया ये आपको खैर इसके लिए we can conduct a separate lecture also in the future कि how to attempt the different types of the questions कि इसमें जो elimination method है उसको हम use कर सकते हैं या नहीं कर सकते. तो इसका हम बेसिक आइडिया लेके चलेंगे. आपके कोई एग्जैक्ट क्वेश्चन हो विच वुड यू लाइक टू आस्क मी?
इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन के बारे में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो अगर हम अपना ही बात करें तो मूल्यांकन की बात जब आती है तो सब बहुत डर जाते हैं कि यार रिजल्ट क्या आएगा, या फिर स्टूडेंट्स लोग को एक डर, अजीब सा एक मतलब खौफ पैदा हो जाता है अंदर। तो ये डर जो है वो हम अपने स्टूडेंट्स जब हम टीचिंग स्किल में जाएंगे तो वो डर कैसे दूर करें। अगर आप यानी कि ये जो बात है कि अगर मैं फेलियर भी हो जाऊं तो इसके बारे में जो डर, यानी कि मैं सब कुछ खत्म हो गया, ये जो प्रेजुडिस है इसको कैसे खत्म किया जाए, अगर आप बताएं। टीचिंग एप्टीट्यूड में ये भी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। बेसिकली अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है ड्यूरिंग द अर्लियर लेक्चर्स की, जिसमें हमने एक जो लेक्चर था दैट वाज ऑन द मोटिवेशन ऑफ द स्टूडेंट। तो उसमें इस एस्पेक्ट को मैंने डेफिनेटली टच किया था कि इसमें हाउ टू गो अबाउट इट, कि जब भी इन केस की यू हैव टू अपीयर इन सम काइंड ऑफ द एग्जाम, तो उसमें जो फियरफुल जो इन्वायरमेंट होता है, तो बेसिकली क्या होता है कि दैट से ओरिजिनेट्स फ्रॉम अवर थॉट प्रोसेस, कि वी फील से इनसिक्योर, कि हमें ये लगता है कि एग्जाम है तो इसको हमने क्वालिफाई करना ही करना है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो इस टाइप का जो फियर है दैट गेट्स इनटू योर माइंड, तो इससे क्या होता है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है एग्जाम में वो क्या होती है कि वो इंप्रूव नहीं होती, रादर इट कम्स डाउन। तो ये मेरी खुद की असेसमेंट है। इवन आई हैव टू फेस सच काइंड्स ऑफ द सिचुएशन कि जब भी हम एग्जाम में जाते हैं कि डरते हुए जाते हैं कि हम ये कर पाए ना कर पाए लाइकवाइज। तो ये जो एप्रीहेंशंस है, तो इसमें मैंने एक जो टेक्निक है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि दिस कैन बी लिंक्ड विद द बिहेवियरल एस्पेक्ट। इसमें आपने जो डिफरेंट टेक्निक्स है वो अडॉप्ट करनी है। तो इसका एक स्पेशल लेक्चर है दैट कैन बी कंडक्टेड अगेन, कि इसमें हाउ टू कम आउट फ्रॉम ऑल दिस एप्रीहेंशंस। तो इसमें जो मेडिटेशन है दैट कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि अगर आप मेडिटेशन है उसकी प्रैक्टिस करते हो 5 मिनट 10 मिनट ऑन द रूटीन बेसिस, तो उससे आपका जो माइंड है वो दैट गेट्स स्टेबल। जब हमारा माइंड है वो स्टेबल होता है, वो सिक्योर होता है, तो वी कैन फेस एनी काइंड ऑफ द सिचुएशन। तो एक जनरल सा एस्पेक्ट है वो मैंने पहले डिस्कस किया था। तो यू कैन, मतलब जो इस टाइप की सिचुएशंस आती हैं, दे कैन बी, मतलब दिस कैन बी हैंडल्ड एट ए पर्सनल लेवल ओनली। कि मैं इसमें ये तो कह सकता हूँ कि आपने मेडिटेशन की टेक्निक अडॉप्ट करनी है, एंड यू हैव टू बी से इंट्रोवर्ट आल्सो दैट सेंस। इसमें ये होता है कि हमने ये है कि जो एस्पेक्ट है हम डिस्कस नहीं करें, कि दे शुड नॉट कम से फ्रॉम अवर माउथ इवन, कि हमने ये नहीं है कि इसको हम डिस्कस कर रहे हैं एंड वी आर से स्प्रेडिंग फियर, रादर उसमें हमारा जो रोल क्या हो जाता है कि दिस बिकम्स ए नेगेटिव। हमने क्या करना है कि इसमें जो इंटरनल मोटिवेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपने खुद को हैंडल करना है, कि यू आर हैंडलिंग योर ओन से वे ऑफ थिंकिंग। तो उसमें वो एस्पेक्ट है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपने इसको इंटरनल लेवल पे इंटरनल मोटिवेशन से आपने इसको हैंडल करना है। दैट इज ओनली थिंग आई कैन से एट दिस स्टेज। लेकिन ये क्या है कि दिस कम्स विद द प्रैक्टिस ओनली। Yes, sir. Hello. Yes, sir. What Hello, is sir. the difference between a curriculum and a syllabus? Sir, what is the difference between TLM and teaching aid? What is the difference between? TLM and teaching aid. Sorry? Teaching learning material and teaching aids. टीचिंग ओके, टीचिंग मटेरियल क्या होता है, टीचिंग एड्स है, इसमें क्या डिफरेंस होता है? तो एड जो टीचिंग एड्स होती हैं दिस कैन बी टेकन एज अ सप्लीमेंट्री, मतलब दे आर गोइंग टू सपोर्ट इन योर एफर्ट ओनली। और जो टीचिंग मटेरियल का मतलब क्या होता है कि यू कैन लुक एट द करिकुलम, क्या होता है, सिलेबस क्या है, कि व्हाट इज टू बी टॉट इन द क्लास। तो बेसिकली दिस कैन बी गिवन द नेम ऑफ द कंटेंट मैनेजमेंट, कि जो कंटेंट है उनको हम कैसे मैनेज करते हैं एंड हाउ दिस आर टू बी डिलीवर्ड टू द स्टूडेंट्स। Okay, sir. Yes, sir. What is the difference between a curriculum and a syllabus? ओके, अगेन दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, कि जो करिकुलम क्या है, कि इसका मैं जनरल सा आइडिया आपको दे सकता हूँ कि जो करिकुलम है दिस कैन बी टेकन एट ए हायर लेवल, कि इसमें क्या होता है कि वी गेट द डायरेक्शन कि व्हाट डू वी वांट टू अचीव एट द एंड ऑफ द कोर्स। कि मान लो आपकी जो ग्रेजुएशन है वो बीटेक है, तो बीटेक के एट द एंड ऑफ द कोर्स, कि बीटेक के एंड पे आप क्या अचीव करना चाहते हो, तो वो दिस कैन बी डिफाइंड एज अ करिकुलम। तो दिस कैन बी सेट ऑन द ईयरली बेसिस आल्सो, कि आपका बीटेक फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ तो क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स थे, तो व्हाट काइंड ऑफ द नॉलेज यू हैव गेन्ड, तो वो एस्पेक्ट आ जाते हैं। सिलेबस का मीनिंग क्या होता है कि वी ट्राई टू गो इनटू द डिटेल्स अगेन, कि व्हाट इज टू बी डिलीवर्ड इन द क्लास। उस पे क्या होता है कि जो टीचर है दे आर गोइंग टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि हर कोई टीचर कहता है कि मैंने क्लास में ये डिलीवर किया, मैंने ये डिस्कस किया। जो सेकंड टीचर है
dealing with the same subject, उसका जो एस्पेक्ट है, उसकी जो अप्रोच है, दिस कैन बी डिफरेंट आल्सो. तो उसमें क्या होता है कि इसमें जो कस्टमाइजेशन का जो स्कोप है वो किस पे होता है, दैट इज इन द सिलेबस. लेकिन जो करिकुलम है, तो दिस कैन बी टेकन एज अ कॉमन ऑब्जेक्टिव कि हमारा कौन सा मिशन है, कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमें अचीव करना चाहते हैं. तो ये एक जनरल आइडिया हम ले रहे हैं यहाँ पे. Okay, sir. So syllabus is within the curriculum, right? Exactly, we can say that, yes. Okay, sir. Curriculum Thank you. Sir, syllabus belongs to curriculum. Yes, you can say that कि syllabus is a part of the curriculum. Yes, sir. Sir, myself, Sutarun Das, your teaching style is very, very well, sir. Sir, I have a question. Sir, are you think a teacher is an example of teaching aids? Sir, how we explain it? एक जो टीचिंग है, इन केस की यू ट्राई टू टेक द एग्जांपल ऑफ टीचर, तो इन केस की आई ट्राई टू टेक द लाइफ टाइम एग्जांपल की जो टीचिंग का रोल है, तो दिस हैज टू बी अप्लाइड इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट. कि जो फैमिली है उसमें टीचर है, यू हैव टू बिकम ए टीचर, यू हैव टू इन्फ्लुएंस सो मेनी पीपल. आपके जो पेरेंट्स हैं, इवन दे माइट हैव टू बी इन्फ्लुएंस्ड. ठीक है, उसमें आपका ऑफिस का जॉब चल रही है, उसमें भी आपको टीचर का रोल है वो प्ले करना पड़ता है बेसिकली. इन केस की यू आर वर्किंग एज ए रिसर्चर, उसमें भी आपकी जो यू हैव टू बी कम्युनिकेटिव. तो जो टीचर है, इसका जो एस्पेक्ट है, दिस कैन बी टेकन. वैसे ये शायद बुक्स में मेंशन नहीं होता, बट जो टीचर है ये क्या होनी चाहिए कि इट शुड बी टेकन एज अ बेसिक क्वालिटी. और जो टीचिंग एड से क्या होती है कि वो बेसिकली क्या है कि दे आर गोइंग टू सप्लीमेंट योर एफर्ट्स, कि आप कैसे एक्सप्लेन करते हो लाइक वाइज. तो दिस कैन बी टेकन एज अ मेन डिफरेंस बिटवीन द टू सिचुएशंस. Okay, sir. Thank you, sir. স্যার একটু মাইক্রো টিচিংটা যদি বলেন, মাইক্রো इस पे ये होता है कि जो माइक्रो का मतलब होता है कि यू ट्राई टू बी एनालिटिकल, और इस पे एक कंसेप्ट होता है टीम टीचिंग होती है. तो ये एस्पेक्ट है, इसकी डेफिनेशन है, ये आपको देखनी पड़ेगी फ्रॉम द बुक इटसेल्फ कि हाउ टू गो अबाउट इट. Hello, sir. There are two types of evaluation: formative evaluation, summative evaluation. How to explain? आई थिंक यू शुड गो फॉर ए सेपरेट लेक्चर ऑन दिस कि इसमें डिटेल्स है, इसको हमने कैसे करके चलना है. Summative is this can be taken as the कि आपने एग्जाम दिए हुए हैं, तो उसका जो रिजल्ट कैसे आता है एट द से एंड ऑफ योर फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेशन सेमेस्टर हुआ, तो जो उसका ओवरऑल रिजल्ट है, दिस कैन बी टेकन एज अ समेटिव. सेकंड आपका पार्ट क्या था क्वेश्चन का? यस, Summative evaluation. समेटिव एंड pardon me, formative evaluation. sorry I could not get your question. Summative and formative evaluation. कहा है उन्होंने. फॉर्मेटिव, হিউরিস্টিক বলেছে ओके, फॉर्मेटिव का मीनिंग क्या होता है कि व्हाइल यू आर लर्निंग इन द क्लास कि व्हाट काइंड ऑफ द ट्रबल्स डू यू फेस. तो उसपे क्या होता है कि ड्यूरिंग फॉर्मेशन की व्हाट आर द मेन एस्पेक्ट्स, तो उसको हम क्या कहते हैं, दिस कैन बी टर्म्ड एज अ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन. मैं जनरल सा आइडिया आपको दे रहा हूं, लेकिन इसमें यह है कि वी हैव टू गो इनटू डिटेल्स. Thank you, sir. एग्जैक्टली.
Sir, I request one question. Teaching is what is the teaching in nature? Okay, again, in case we try to define the nature of the teaching, तो this can again be taken as a qualitative aspect. कि जो teaching है उसका main aspect क्या होता है कि we want to develop understanding in a student. कि जो उस understanding के लिए हमने कौन सी technologies adopt करनी है, जो teacher है उसका behavior कैसा होना चाहिए class में. तो this can be again taken as a very wide topic, but I would like to discuss it in the future. I can teaching learning approach में teaching role play classroom management क्या problem हो रही है? We can definitely discuss these topics in the future along with certain questions also. कि जो questions है we can get a better idea. कि आपको जो topics है that has been discussed, we can pick some small topics. तो उसकी जो duration हो सकती है this can be only 20 minutes, 30 minutes. So we can go for 5-7 questions. So these kind of say efforts can help you in a big manner. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you.